Good morning, my dear kids. So, today is the first day of spoken English, online spoken English. Welcome to that. Are you ready? Children, we'll be doing English from today till 30th of June. And daily, whatever topic we'll take up, you'll have to do it, practice it as much as you can. So when your tongue will not be tight on these words, I'm sure you will be able to speak very fluently. So I want you to write also. Seeing the video, you have to write everything and then practice. Because seeing only for once, you will not be able to practice it. And children, the topics which we are going to take up in this online spoken English class, they are situational conversation. So for few days we'll be talking at different situation. How people talk, suppose how the strangers converse with each other, then how the family members they talk to each other, how do we talk to friends, how do we talk on phone. So all these situational talking we will be doing. So you need not take my dialogues. You can invent your dialogues. You write some new dialogues. Be creative. And then you have to say how we'll give example. You have to make the example yourself at home. Make a small video and then post it in your class groups so that we will check and we'll be telling you your marks also and your improvements also, right children? And then we'll be also covering homophones and your vocabulary. See, we should have right word for a right occasion, for a right meaning. Homophones वो words होते हैं बेटा which sound same but they are actually different. तो वो भी हम करेंगे, जैसे I and I. So there is difference between two words but they are heard same. So I like this. So homophones हम बहुत सारे करेंगे तरह तरह के. Then vocabulary लेंगे, words, knowledge of words, and then we'll be taking up synonyms and phonics. Group discussions भी होंगे जब आप conversation में एकदम ठीक हो जाएंगे, बेटर हो जाएंगे. We'll be having mock interviews also. उसमें एक इंटरव्यूअर बनेगा, एक इंटरव्यूई, और जो दो लोग एक दूसरे का, लाइक वन कैरेक्टर कैन बी सम सक्सेसफुल पर्सन, या कोई आप सेलिब्रिटी बन जाइए, कोई एक्टर बन जाइए, साइंटिस्ट, टीचर, कुछ भी बन जाइए, और दूसरा आपका इंटरव्यू लेगा. वो भी इंग्लिश में करके देखिए, आपको बड़ा मजा आएगा. एंड देन वी कैन ऑल्सो हैव सर्वे ऑफ सक्सेसफुल पीपल. एज आई टोल्ड यू इन माई अर्लियर वीडियो कि आप जो भी सक्सेसफुल है, आप अपने फादर मदर, उनसे ज़्यादा सक्सेसफुल कोई नहीं है, उनका इंटरव्यू लीजिए. सो वो वीडियो भी बनाइए, एंड दैट टू इन इंग्लिश. आप ज़रूर बात कर सकते हैं, लिख करके बैठ जाइए, लेकर के बैठ जाइए, 2-4 बार यू स्पीक 2-3 टाइम्स. एक्सेंट देखो, मिरर, शीशे के आगे खड़े होके देखो आप कैसे बोलते हैं, बार बार 10 बार जोर जोर से बोलो. फिर 11th टाइम यू हैव टू पुट स्ट्रेस एंड एक्सेंट. पहले 10 टाइम्स तो यू हैव टू स्पीक, एंड एज आई टोल्ड यू कि थिंक इन इंग्लिश, आप सोचो इंग्लिश में. So automatically words will come out. And then we'll be having translation and idioms also. Translation एक होता है English to हिंदी, हिंदी to English. Translate करते हैं हम कि ये इस भाषा में ऐसे, तो दूसरी भाषा में कैसे बोलेंगे. And idioms कौन से होते हैं, जो मुहावरे वगैरह होते हैं, जिनका सुनने में तो कुछ और लगता है लेकिन एक्चुअल उसका अर्थ कुछ और होता है, मीनिंग कुछ और होती है. So we'll be doing idioms also, कि हिंदी में ये है idioms, इंग्लिश में ये है, उनकी डायरेक्ट ट्रांसलेशन नहीं होती. एंड देन वील बी डूइंग वर्ड्स फॉर डिफरेंट सीन्स. हम हर जगह के सीन्स के वर्ड्स देखेंगे. जैसे अगर हम फ्लाइट में जाते हैं तो एयरपोर्ट से लेकर के सारे आप वर्ड्स जो फ्लाइट रिलेटेड है. आप रेलवे स्टेशन जाएं, आप बस स्टैंड जाएं, आप किचन में जाएं, आप गैराज में जाएं, आप जहाँ भी जाएं, सो यू हैव टू टेक अप वर्ड्स एंड स्पीक. वहाँ से आपको नए नए वर्ड्स बोलने हैं. एंड देन वी हैव डिफरेंट बिटवीन रिटन एंड स्पोकन. फर्स्ट एग्जाम्पल विल बी टुडे ओनली. दिस विल बी टेकन अप in every video, as well as in the end also we'll take it up, because written और spoken English different होती है. जब हम write करते हैं तो हम लिखते हैं I can not. When we speak we say I can't, I am not, I ain't,
he will do, he'll, हम he'll तो ज्वाइन कर देते हैं वर्ड्स को स्पोकन में. सो वो आपको पढ़ना है. जैसे I am लिखते हैं तो I then am, बट हम उसको ज्वाइन कर देते हैं, I am बोलते हैं. I am fine, I am fine नहीं, I am fine. ठीक है. What is your name नहीं, What's your name. तो ये कंबाइन करके ही इंग्लिश का सारा खेल हो जाता है. और स्ट्रेस, दो चीज़ें ध्यान रखनी है. आपको इंग्लिश आती है, वर्ड्स आता है, ग्रामर आता है, यू ऑल आर वेरी स्मार्ट, तो आप कर सकते हैं. और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अपने डायलॉग राइटिंग करेंगे बहुत सारी, जो आज के वीडियो में मैं बताऊंगी. तो बहुत सारी डायलॉग राइटिंग करिए, सीन राइटिंग करिए, डायरी राइटिंग करिए. राइटिंग से आपको आ जाएगा, राइट. रिटन भी ज़रूरी है, बट first of all is listening. So listen a lot. Thank you. Let's start our video. Hello my senior adorables, class 6 to 11 students. So this is part 1 of situational conversation. तो हम situational conversation का first topic ले रहे हैं, conversation between stranger. Conversation is talking, speaking, when two people speak to each other, that is conversation. And it is between strangers. Strangers are the people whom we do not know. तो कभी आप किसी नए फ्रेंड में या 11th 12th में, आप नए 11th में, so many new students will join our school like 10th पास वाले और schools के. So जब आप पहली बार मिलते हैं तो कैसे बोलते हैं? Everybody should know this, right? So we'll be starting today. John, like we have two strangers, two characters we have chosen. तो आपने क्या करना है, एक खुद बन जाना, एक अपने ब्रदर सिस्टर, ग्रैंड पेरेंट्स हो गए, पेरेंट्स हो गए, मॉम हो गई, फ्रेंड हो गया, किसी को भी दूसरा कैरेक्टर बना लो और आप इसको प्रैक्टिस करना. जॉन कह रहा है हेलो आई एम जॉन. देखिए आई एम जॉन नहीं बोला है, आई एम जॉन. दिस इज द करेक्ट स्पोकन. हेलो आई एम जॉन. Dick says, Dick replies rather, hello, I'm Dick. अब दोनों ने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया. What's your name? What is your name नहीं बोलते, What's your name. पर ये थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता कि सीधा ही आप नाम पूछ रहे हैं. तो हेलो मेरा नाम ये है, और वो कहेगा हेलो मेरा नाम ये है, इंस्टेड ऑफ आस्किंग. ठीक है. हाउ आर यू डिक. नाउ जॉन नोज दैट ही इज स्पीकिंग टू डिक, so he is asked a question. How are you, Dick? What is the reply of Dick? I'm fine. How are you, John? तुम कैसे हो? I'm fine too. देखो to पे और you, इस you पे हमें स्ट्रेस देना है. How are you, John? Because एक बार you आ चुका. How are you, Dick? तो अब Dick बोल रहा है How are you, John? तो you पे आप स्ट्रेस करेंगे, जहां भी अंडरलाइन है. You have to stress on those words, तो आप काफी मीनिंगफुल लगेंगे. जॉन कह रहा है I'm fine too. मैं भी अच्छा हूँ. too. What do you do, Dick? मतलब आपका एक्सेंट सही होना चाहिए. Where you are speaking a statement, exclamation है, question mark है, stress सब words हैं. So बेटा you have to see, because you are seniors, you understand. Dick says I study in class 11th. And what do you do, John? Yes, so the reply of John is I study in class 11th too. अब मैं भी पढ़ता हूँ इसी क्लास में, 11th में ही पढ़ता हूँ. या आप प्लेग्राउंड में मिले हैं, या बस में मिले हैं, या कहीं बाहर बात कर रहे हैं, तो वो बड़े खुश होके कह रहा है. तो इसमें हम मैं जैसे स्टाइल से बोल रही हूँ, आपने ऐसे ही बोलना होगा. I study in class 11th too. यानी मैं भी क्लास 11th में पढ़ता हूँ. या कोई बोलेगा I like apple, तो दूसरा कह रहा है आई लाइक एप्पल्स टू. मुझे भी एप्पल पसंद है. समझ गए. डिक, व्हाट डज योर फादर डू. जॉन, माय फादर इज अ बिजनेसमैन. कि मेरे फादर बिजनेसमैन है. एंड व्हाट डज योर फादर डू. तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं. मेरे पिताजी तो ये काम करते हैं. तुम्हारे तो स्ट्रेस होता है ना, देखो हिंदी में भी ऐसे ही, इंग्लिश में भी स्ट्रेस है. My father is a businessman. What does your father do? Then Dick will say, my father deals in medicine. Okay, कि मेरे पिताजी दवाइयों का काम करते हैं. जॉन कहेगा where do you live, Dick? अब जॉन ने नई एक बात शुरू की कि तुम रहते कहाँ हो.
I live at Model Town in बाड़मेर. दो जगह अगर हैं तो बेटा जो उसमें से छोटी है उसमें at लगाते हैं, at प्रपोजिशन आता है, और जो बड़ी जगह है, अब मॉडल टाउन में और बाड़मेर में बड़ा कौन है? बाड़मेर. अगर बाड़मेर और इंडिया की बात हो रही है तो बाड़मेर में at आ जाएगा और इंडिया में इन आएगा. सो इट्स नॉट दैट बाड़मेर आएगा तो इन ही आएगा, नो. जो बड़ी है जगह उसमें इन, जो स्मॉल प्लेस है एज कंपैरिजन उसमें एट. या जैसे कोई कह सकता है आई लिव एट स्ट्रीट नंबर 3 इन मॉडल टाउन, तब स्ट्रीट और मॉडल टाउन में मॉडल टाउन बड़ा है तो इन मॉडल टाउन आ जाएगा और एट स्ट्रीट नंबर 3. यू अंडरस्टैंड? एंड वेयर डू यू लिव? आप कहाँ रहते हैं? आई लिव एट मॉडल टाउन इन बाड़मेर टू. अब वो रहते भी एक जगह है. सो वो बहुत खुश हो गया. डिक कहता है ओह व्हाट अ कोइंसिडेंस जॉन, कितना इत्तेफाक है. एक्सक्लेमेटरी देखिए मार्क है. ओह व्हाट अ कोइंसिडेंस जॉन. यस. व्हाट आर योर हॉबीज? अब हॉबीज की बात चली. अब हम बात करते हैं तो यही चीजों पे बात करते हैं, है ना. पर्सनल ज्यादा नहीं पूछते. पहले नाम हो गया, फादर्स वगैरह के पेरेंट के बारे में हो गया, थोड़ा बहुत एड्रेस हो गया, स्टडी कहाँ करते हो, अब हॉबीज पूछ ली, थोड़ा क्लोज हो गए. आई लव टू लिसन टू म्यूजिक. लव जब बोलेंगे तो थोड़ा सा लंबा लेंगे. आई लव टू लिसन टू म्यूजिक ऐसे नहीं होगा. आई लव टू लिसन टू म्यूजिक. एंड यू, तुम, ठीक है ना. एंड यू? आई लव टू प्ले क्रिकेट एंड समटाइम्स I also paint in leisure. Leisure होता है खाली टाइम में. That is leisure. Its pronunciation is like pleasure. Leisure. I love to play cricket and sometimes I paint in leisure. I speak English haltingly. Haltingly means रुक रुक के, which is not fluent. I speak English haltingly. But you speak very fluent English. Yes, I have worked hard on my language. I have been practicing from last 6 months. वो कहता है कि मैं 6 महीनों से प्रैक्टिस कर रहा हूँ और बहुत हार्ड वर्क किया है लैंग्वेज पे. बेटा लैंग्वेज हम सीखते नहीं हैं. एज आई टोल्ड यू इन माई वीडियो कि जो इंग्लिश एक चाइल्ड है वो जब अ से अनार या ए फॉर एप्पल भी नहीं जानता तभी वो इंग्लिश बोल लेता है. तो ये सुनने से आएगी. आप मुझे सुन रहे हैं, आप अपने घर वालों को सुनिए, आप शीशे के आगे खड़े होकर अकेले 10 बार इसको पढ़िए, इसी डायलॉग्स को. यू विल अंडरस्टैंड सो मच. डिक, कैन यू गाइड मी हाउ टू स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश? देखिए बड़े बच्चे बड़े काम की बात करते हैं. उसने फट से पूछ लिया कैन यू गाइड मी, कि मैं फ्लुएंट कैसे करूं. डिक कहता है यस, यू हैव टू रिमेंबर द फॉलोइंग पॉइंट्स विच हेल्प मी टू मास्टर फ्लुएंसी. अब मास्टर करना किसी में परफेक्ट हो जाना, तो फ्लुएंसी के लिए मैंने जो पॉइंट्स किए तुम भी इन पर ध्यान दो. व्हाट आर द पॉइंट्स? स्टार्ट थिंकिंग इन इंग्लिश. पहली बात, हम हिंदी अच्छी तरह से और इंग्लिश अटक अटक के क्यों बोलते हैं? बिकॉज हिंदी, वी इंडियंस थिंक इन हिंदी. सो वी हैव एंड वी आर नॉट शॉर्ट ऑफ वर्ड्स. हमारे पास वर्ड्स भी बहुत सारे होते हैं, एक ही तरह से हम बहुत कुछ बोल लेते हैं बिकॉज वी हैव बीन स्पीकिंग हिंदी. अगर आप वैसे सेंटेंसेस लिखने पे जाएंगे तो बेटा 200 से ज़्यादा सेंटेंस तो हम बोलते ही नहीं है. 200-250 होते हैं, उसमें से एक आधा वर्ड इधर उधर कर देते हैं. तो अगर आप रटने पे भी बैठेंगे तो यू कैन रियली मार्क देम अप, यू कैन लर्न देम, यू कैन बाय हार्ट द वर्ड्स इन सेंटेंसेस इन 2-3 days. फिर आप उसको स्टाइल से अपना रोज रोज बोलिए. यू विल, योर टंग विल नॉट बी टाइट. टंग टाइट होता है जब हमारा बहुत अच्छी तरह से खुला नहीं निकलता. सो वो पॉइंट्स बता रहा है. स्टार्ट थिंकिंग इन इंग्लिश. रिमेंबर LSRW. कोई भी लैंग्वेज की बात करता है तो बेटा LSRW इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई हैव गिवन यू फुल फॉर्म ऑल्सो. फर्स्ट इज लिसनिंग. सबसे पहला लैंग्वेज ढूंढने का काम, मास्टर करने का काम ये नहीं है कि आप ग्रामर पढ़ने चले जाते हैं. नो, यू हैव टू लिसन. अब आप कहेंगे कि हमारे आसपास नहीं बोल रहा, घर में नहीं बोल रहा, कितना सुने. और टीचर को अगर ज़्यादा सुनने लग जाए तो कॉन्सेप्ट से माइंड हट जाता है. सो बेटा लिसन. यू हैव टू लिसन इट फ्रॉम यूट्यूब. यू हैव टू लिसन इट टू द पीपल हु स्पीक. Go and sit with the people I told you.
जो इंग्लिश का कोई बोलने वाला है, कॉलेज स्टूडेंट्स, कि आपके स्कूल स्टूडेंट्स या आपके फादर, आपके अंकल, यू लिसन टू देम। और कुछ नहीं करना तो आप टीवी खोलिए, इंग्लिश चैनल ऑन करिए, सुनिए, न्यूज़ सुनिए। न्यूज़ से वोकैबुलरी बहुत स्ट्रांग होती है, बिकॉज मल्टीपल टाइप ऑफ वर्ड्स आर यूज्ड इन दैट। सो फर्स्ट इज लिसनिंग, एंड उसको सुनते सुनते वैसा बोलने की कोशिश करिए। वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन सिर्फ सुन के नहीं आएगी जब तक आप उसको 2-3 बार एक वर्ड को बोल नहीं लेते। फिर रीडिंग राइटिंग की स्टेप आता है, जो रीडिंग राइटिंग मेरे डीपीएस के बच्चों को बहुत अच्छी आती है। तो ये देखिए गुड पॉइंट्स बताए हैं जो आप भी अपने ऊपर, यू कैन अप्लाई दीज पॉइंट्स ऑन योरसेल्फ एंड बी अ मास्टर इन द लैंग्वेज। जॉन, थैंक यू। क्यों थैंक किया? बिकॉज ही हैज गॉट द टिप्स। वी विल मीट सून, डोंट मेंशन इट। अब उसने कहा थैंक यू, तो थैंक यू कहने की जरूरत नहीं है, वो फ्रेंड्स हैं। बाय, सी यू अगेन। जॉन सेज बाय बाय, तो दोनों चले गए। ठीक है, इसके आगे हम बढ़ेंगे। थोड़ा सा कॉन्वर्जेशन के आपको डायलॉग्स बताए हैं, इसमें आप आगे बढ़ते जाइए। ग्रुप बना लीजिए, ग्रुप डिस्कशन होगा। ऑल दीज थिंग्स आर इन आवर प्रोसीजर, सो विल बी डेफिनेटली टेकिंग देम अप। सो बच्चों, अब मैं जॉन बनती हूँ और शिवानी मैम डिक बनेंगे और हम आपको बात करके दिखाएंगे। आप लोग भी घर पे मम्मा को, फादर को, किसी को भी डिक बना के खुद जॉन बन के अपना नाम लिखकर, क्योंकि ये नाम मैंने लिए हैं, जब हम बात करेंगे तब थोड़ी ना लेंगे। यस, वील स्टार्ट। आई एम जॉन, मिस शिवानी इज डिक। हेलो, आई एम जॉन। Hello, I'm Dick. हाउ आर यू डिक? I'm fine. How are you, John? I'm fine too. What do you do, Dick? I study in class 11 and what do you do, John? I study in class 11 too. What does your father do? My father is a businessman. And what does your father do? My father deals in medicine. Where do you live, Dick? I live at Model Town in Badme and where do you live? I live at Model Town in Badme too. Oh, what a coincidence, John. Yes. What are your hobbies? I love to listen to music. And you? I love to play cricket and sometimes I also paint in leisure. I speak English haltingly, but you speak very fluent English. Yes, I have worked hard on my language. I have been practicing for last 6 months. Dick, can you guide me how to speak fluent English? Yes, you have to remember the following points which help me to master English. First, start thinking in English. Remember LSRW. L means listening, S means speaking, R means reading, W means writing. Thank you. We will meet soon. Don't mention it. Bye. See you again. Bye-bye. So this was the answer, children. This was the example between talking between strangers. So we have spoken. You can add your own, invent your own dialogues. Keep on practicing. और इसका वीडियो बना के आप कल तक हमें भेजेंगे, जिसमें आप कन्वर्जेशन करेंगे। आपके हाथ में पेपर हो सकता है पर आप पढ़ेंगे नहीं, जहाँ तक हो जाए याद कर लीजिए। और एक्सेंट जिसका अच्छा होगा, बिना देखे जो बोलेगा, उनके वीडियोस फिर हम अपलोड करेंगे। थैंक यू वेरी मच। आप इसको प्रैक्टिस करते रहिए बेटा।